Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture, we studied about the introduction of denudation and form of denudation. Today we are going to study the type of denudation, that is weathering, and types of weathering, which is physical weathering and chemical weathering. Weathering. Weathering is a process that involves the breakdown of the rocks into smaller particles. Thus, weathering can be defined as the mechanical disintegration of chemical decomposition of rock that destroy the coherence of the rock and break them into a small fragments. So basically हमने weathering पढ़ा था, which is the first process of denudation. Denudation include three processes: weathering, erosion and mass wasting. So weathering के through weathering कौन सा process है जो कि external forces की वजह से rock की breakdown करता है. Now we have three types of weathering: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. ये थ्री एक्सटर्नल फोर्सेस है जिसकी वजह से जो है रॉक के डिफरेंट पार्टिकल्स या फिर रॉक जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ physical these three weatherings are subdivided into physical weathering is divided into freeze dry action, frost action, insulation, प्रेशर रिलीज एंड ग्रेविटी. फिजिकली चार तरीक़ों से जो है रॉक की ब्रेक डाउन होती है, दैट इज़ फ्रीज डाउन एक्शन, फ्रोस्ट एक्शन, इंसुलेशन, प्रेशर रिलीज एंड ग्रेविटी. देन केमिकली हमारे पास ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इट्स मीन इट्स कंटेन ऑक्सीजन. कार्बोनेशन मीन कार्बन डाइऑक्साइड. इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड होगी. हाइड्रेशन मीन्स वाटर एंड सॉल्यूशन. कोई भी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, किसी भी दो या फिर किसी भी केमिकल का वाटर के साथ मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है. देन बायोलॉजिकली वी हैव एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, मैन्स एंड वेजिटेशन. यहाँ पे प्लांट्स या वेजिटेशन एक ही बात हो जाएगी. नाउ नंबर 1, फिजिकल वेदरिंग. Physical weathering includes the physical disintegration of rock material without any change in its chemical composition. Some of the processes involved in physical weathering are freeze-thaw action, frost action, insulation, pressure release, and gravity. Physically weathering means physical disintegration. Physically rock किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल में विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन. केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आए बगैर रॉक किस तरीके से फिजिकली टूटता है, इसको हम पढ़ेंगे, जो कि 4-5 तरीके से है. नंबर 1, फ्रीज डाउन एक्शन. This is the kind of weathering take place in mountainous areas where temperature is around freezing point and its attribute to the expansion of freezing water captured in a crack of rocks, the ice crystal growing deeply and their grow weakened the rock which break apart in the course of time. So basically freeze the action क्या usually mountainous areas में होता है. mountainous areas में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ice होती है, ठीक है, तो जैसे ही आइस का जो प्रेशर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आइस कंटिन्यूसली उस जगह पे आ रही है, उस जगह पे जो है वो लगती जा रही है, तो उसके हैवीपन की वजह से एक्सपेंशन हो जाती है उस रॉक के अंदर और रॉक जो है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है. Number 2, frost action. Ice has greatly power to damage roads and sidewalks and split open water pipes. Similarly, water contained by rock in cracked joints, even pores, can freeze into crystal that shattered even the strongest igneous rock masses. फ्रोस्ट एक्शन क्या है, रॉक्स के बीचेस में छोटे छोटे से स्पेसेस भी होती हैं, तो उन स्पेसेस में कंटिन्यूसली वाटर फिल हो रहा है या आइस फिल हो रही है, तो कंटिन्यूसली जब फिल होता जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, दो रॉक्स के दरमियान रॉक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. या फिर आप ये सोचें कि किसी बड़े से एरिया में छोटी सी स्पेस है और कंटिन्यूसली वो फिलअप होती जा रही उसका प्रेशर एक्सर्ट होता जाएगा और वो एट दी एंड क्या होगी, वो टूट जाएगी. Then insulation. In desert, rocks are intensely heated during day, but at night the temperature drops rapidly. Then the interior of rocks contract more rapidly than the interior, setting up internal stress. Such stress are repeated time and split. This process called block integration. इंसोलेशन का प्रोसेस. इंसोलेशन के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. अगर आप लोग ने सुना हो, या दैट इज़ पैराडाइज पॉइंट. वो क्या था, पैराडाइज पॉइंट जो है बीच में होल था. वो किस वजह से आया था, वो आया था वाटर के प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से.
सो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एग्जांपल डेजर्टी एरिया की दी है कि हीट कंटिन्यूसली एक जगह पे पड़ रही है, तो हीट के प्रेशर की वजह से या फिर हम क्या होते हैं, डे टाइम में हीट जो है वो हीट जो है वो उसके ऊपर पड़ रही है, नाइट टाइम में क्या होगा, ठंडा हो गया मौसम। देन अगेन डे टाइम में हीट आ रही है, नाइट टाइम में ठंडा हो गया। तो कंटिन्यूसली चेंजिंग की वजह से किसी रॉक का ब्रेक डाउन हो जाना। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हम जो है पैराडाइज पॉइंट को ले सकते हैं। Then, pressure release. Most of the rocks are found deep into the interior of the earth. During the passage of time, when the rocks above them are removed away, the deeper rocks become exposed and then released from pressure. Due to the pressure release, cracks are produced in a rock. This process is called exfoliation. So, pressure release. नाम से पता चल रहा है pressure release. रॉक्स क्या है, बैक टू बैक एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो समटाइम्स जब अबव जो सबसे ऊपर रॉक होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है नीचे के रॉक्स के ऊपर, तो उसकी बिना पे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। रॉक्स हैं, अगर आप रॉकी एरिया पे किसी भी रॉकी एरिया में जाएं तो वो एक दूसरे के ऊपर जो है पड़े हुए होते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस किसी भी तरीके की प्रेशर एक्सर्ट होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी वो बीचेस वगैरह के एरिया में आप चले जाएं जहाँ पे बहुत सारे जो रॉक्स पड़े हुए हैं, तो जो ऊपर रॉक है उसके ऊपर आप खड़े हुए हैं और वो बहुत वीक हुआ हुआ है, तो अगर वो टूटेगा तो नीचे जो भी रॉक्स हैं उसको भी जाके वो जो है नुकसान पहुंचेगा। तो इट्स मीन प्रेशर जो है वो नीचे डीप डाउन तक जाके जो है वो एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से रॉक का ब्रेक डाउन हो जाता है। देन ग्रेविटी. मैनी रॉक्स दैट हैव लार्ज जॉइंट डिसइंटीग्रेशन इन अकाउंट ऑफ ग्रेविटी थ्रू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज वीकन yet it action breaking the rock into the insignificance. So ग्रेविटी का क्या काम होता है, ग्रेविटी का काम होता है होल्ड अप। ग्रेविटी ने होल्ड की हुई है हर चीज़ को। सो समटाइम्स कुछ एरिया में ऐसा भी होता है कि ग्रेविटी की वजह से रॉक जो है वो स्टिक हुए हैं, ग्रेविटी वीकेंड हुई, रॉक स्कैटर्ड हो गए। नाउ सी इन दिस पिक्चर, दिस इज फ्रीज दाउ एक्शन। कंटिन्यूसली आइस की जो है इस पर डिपोजिशन होती रही और ये एक रॉक जो है वो 2 रॉक्स में डिवाइडेड हो गए। देन फ्रॉस्ट एक्शन, क्या हुआ, छोटे से एरिया में वाटर फिलअप था, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ और एट दी एंड क्या हुआ, वो 3 पीसेस में डिवाइड हो गया, वो स्कैटर्ड हो गया। देखिए इंसोलेशन, पहले क्या हुआ, छोटा सा होल होगा, लेकिन ये बड़ा सा होल किस वजह से हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ किसी एक्सटर्नल फोर्स की एक्सटर्नल जो है फोर्स अप्लाई हुई थी। नाउ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी हमें कह सकते हैं कि पीछे अगर आप ये देख रहे हैं माउंटेन टाइप का है, ये इसने होल्ड की हुई थी, लेकिन एट दी एंड क्या हुआ, ग्रेविटी वीकेंड हुई और ये स्कैटर्ड हो गए। Now, then we have a chemical weathering. Chemical weathering involves the decomposition and changed properties. All minerals are subjected to chemical alteration when it's exposed to atmospheric and biotic agent. Important chemical reactions that affect the rocks are below: ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन। नाउ फिजिकल वेदरिंग में हमने पढ़ा कि इसमें फिजिकल चेंजेस आएगी, नन ऑफ द केमिकल चेंजेस अकर। केमिकल वेदरिंग में जो है डिकम्पोजिशन होगी, किस वजह से, प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस की वजह से। और प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस किस वजह से होती है, केमिकल्स की वजह से होती है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स, oxidation includes oxygen, carbonation includes carbon dioxide, hydration includes water, and solution includes the compound and a water. So, number 1, oxidation. A chemical combination of an element with oxygen is called oxidation. Oxidation is defined more generally as a chemical reaction in which an ion or an element loses electron. Oxidation has formed some of the most important minerals resources, that is iron ore, in tropic area. Oxidation is the dominant chemical weathering process. सो ऑक्सीडेशन हम वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम ले सकते हैं कि किसी भी एरिया में अगर बहुत सारे मतलब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल ली ट्रॉपिकल एरियाज़ की, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो है आयन की कंसंट्रेशन की वजह से या एलिमेंट लूज की वजह से रॉक की ब्रेक डाउन हो जाना, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल या आयंस पार्टिकल ने उस रॉक्स को होल्ड अप किया हुआ है। ऑक्सीजन की जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ने बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया, आयन ब्रेक डाउन हुए और वो रॉक्स क्या है वो टूट गए। ट्रॉपिकल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जो वेदरिंग होती है वो होती है ऑक्सीडेशन की वजह से। हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, हमने पढ़ा था हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, उसी ऑक्सीजन की वजह से जो है वो आयंस जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, एलिमेंट्स जो है वो उसको लूज़ कर देते हैं और जो एलिमेंट अपने आयंस को लूज़ अप कर देते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है,
वेदरिंग जो है वो केमिकल वेदरिंग आकर होती है. नाउ कार्बोनेशन, रेन वाटर while passing through the atmosphere dissolves some carbon dioxide present in the air, and thus a weak carbonic acid is formed. This carbonic acid dissolves limestone. Carbonation is more noticeable in limestone and chalk area of the humid region of the world. Carbonation involves what? Carbon dioxide. और carbon dioxide से क्या बनता है? Carbonic acid, which is very very एक्टिव एसिड एंड वेरी हार्म. तो कार्बोलिक एसिड जब रेन ड्रॉप, यहाँ पे एग्जांपल दिए ना, रेन ड्रॉप की वजह से जो है अगर कोई उसमें अगर कार्बोलिक एसिड मौजूद है, कार्बोलिक एसिड क्या करता है? लाइमस्टोन को डिज़ोल्व कर देता है. ठीक है, जब वो डिज़ोल्व होती है लाइमस्टोन कार्बोलिक एसिड के साथ तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से रॉक में होल्स हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं और वो ब्रेक डाउन हो जाता है. कार्बोलिक एसिड बहुत ज़्यादा जो एक्टिव है और जब वो लाइमस्टोन के साथ मिलता है तो वो कम्प्लीटली एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो रॉक्स में क्या हो जाते हैं? होल्स हो जाते हैं. हाइड्रेशन, केमिकल यूनियन ऑफ द वाटर इन अ केमिकल इज कॉल्ड मिनरल इज कॉल्ड हाइड्रेशन. इट कॉज एक्सपेंशन इन द रॉक दैट ब्रेक डाउन ऑफ रॉक. हाइड्रेशन क्या? कम्प्लीटली वाटर की बात हो रही है. वाटर का अगर एक रॉक पे आप कंटिन्यूसली वाटर आप डालते रहें एट द एंड वो वीकेंड होगा और वो टूट जाएगा. देन सॉल्यूशन, सम मिनरल्स लाइक सॉल्ट, जिप्सम may be dissolved by water that remove in the form of solution. In the process of chemical weathering is known as solution. सॉल्यूशन कब बनता है? जब कोई भी हम केमिकल को जो है वाटर में डाल के मिक्स कर देते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल दिए जिप्सम और सॉल्ट की. जिप्सम और सॉल्ट को वाटर में आपने डिज़ोल्व किया, वो एक सॉल्यूशन बन गया. उसको रॉक के ऊपर आप कल डालते रहें तो क्या होगा? वो टूट जाएगा. जैसे ही ये प्रोसेस है हाइड्रेशन का, आप वाटर को कंटिन्यूसली जो है वो हीटअप करते हैं ना सॉल्ट वो रॉक के साथ, क्या होगा? एट द एंड वो वीकेंड होगा, टूट जाएगा. और अगर वाटर में कोई एक्सटर्नल चीज़ डल रही है, कोई केमिकल डल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है रिएक्शन होगा उसका. नाउ लास्ट वी हैव अ बायोलॉजिकल वेदरिंग. Animal, plants, and humans are also responsible for the weathering of rocks. That is, animal and insects, vegetation, and men. Number 1. Animal and insects. Burrowing animal like rodents, termites, rats, ants, and earthworms play a vital role in the weathering of rocks. Burrowing animal क्या कहते हैं? जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं. rodents कौन होता है? हमारे पास rodents के अंदर आते हैं rats, rabbits जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं. ठीक है, एंड्स, अर्थवर्म, ये सब जो है बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं क्या करने में? ब्रेक डाउन करने में या फिर वेदरिंग अकर करने में. Vegetation. The roots of the plants always continue to grow, and when they grow, they exert incredible force and they work down into the fracture of the rock. The fracture get ripped up, and the family result in the breaking apart of the rock. वेजिटेशन में आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं. प्लांट्स की रूट्स, अगर प्लांट्स किसी एक, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल प्लांट्स है वो यहाँ पे है, तो इसकी रूट्स यहाँ दूर तक जा रही होंगी, क्योंकि इन द सर्च ऑफ वाटर रूट्स जो है ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड अप हो जाती है. तो रूट्स की वजह से ही क्या होता है? रूट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है, तो रूट्स की वजह से ही जो है रॉक की ब्रेक डाउन भी हो सकती है. वो क्या करती हैं? वो जो है ज़मीन में फ्रैक्चर कर देती है, मतलब फ्रैक्चर कर देती हैं, और जिसकी एट दी एंड जब फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है. Last, man helps in weathering by breaking away the rocks from mining, making the roads and railways and for the construction process. और humans क्या करते हैं? रॉक्स की ब्रेक डाउन करते हैं. माइनिंग आप लोगों को पता है कौन सा प्रोसेस है? माइनिंग करते हैं किस वजह से? रोड्स बनाने के लिए, रेलवे और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेदरिंग.